Okay, welcome. Welcome. बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं. Okay, welcome. Okay, let's start today's class. आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस, इंट्रोडक्शन टू द कैपेसिटेंस. Sorry. Okay, let's begin with today's class. कैपेसिटेंस हम स्टार्ट करते हैं. निवेशा, वेलकम. So in this class we will understand the concept of capacitance. Capacitance क्या होती है? तो सबसे पहले हमें कैपेसिटेंस के कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा. It is the ability of a conductor to store the charge. To store the charge. बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, किताबों में भी आपको मिलेगा. अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की. A device used to store the charge. To store the charge. इससे पहले हम कैपेसिटेंस चैप्टर स्टार्ट करें, आपको कुछ एनालॉजीज बहुत क्लियर करनी पड़ेगी. मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. देखिए, कंसीडर अ टैंक. इस टैंक को आप कंसीडर करिए. इट इज बीइंग फिल्ड विद वाटर. इसमें पानी भरा हुआ है. तो लेवल ऑफ वाटर is directly proportional to quantity of water. Quantity of water. तो जैसे जैसे आप वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे तो वाटर लेवल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. उसी तरह सिमिलरली whenever we charge a body, the potential of body increases. When we start charging a body, the potential of body on charging it increases. So potential of body definitely depends upon the amount of charge in the body. Similarly, here we can say that level of water is definitely proportional to quantity of water. But now take another example. Take another beautiful example. Take this container. And suppose in this container we have filled 2 liter of water. 2 liter of water. And in this container we have filled with 5 liter of water. तो यहाँ बहुत important है. And they have both of them have suppose same level of water. But quantity of water
quantity of water is different. The level of water only does not depend upon the quantity of water. We can also say that level of water depends on shape and size. Shape and size of container. ये एक एनालॉजी है, इससे हमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होंगे. तो वाटर का लेवल सिर्फ क्वांटिटी ऑफ वाटर पे ही डिपेंड नहीं करता. क्वांटिटी ऑफ वाटर पे ही डिपेंड नहीं करता, वो शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड करता है. अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंटेनर में ये ब्रॉड था और ये थोड़ा थिन था. यहाँ हम कम पानी फिल करके, इसमें हम लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल करके उतना ही वाटर का लेवल रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं जितना फर्स्ट कंडक्टर का था. उसी तरह similarly we want to say that whenever we charge a body, on charging a body the potential of body increases, there is no doubt about it. But the potential of body, does it only depends upon the charge of body? No, it depends upon the charge in the body as well as it depends upon the shape and size of body. So in this chapter the shape and size of conductor plays very important role. कंडक्टर का शेप और साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब जैसे देखिए, एक आपको एग्जांपल देते हैं, जस्ट समझाने के लिए है ये. जस्ट टेक अनदर एग्जांपल. नाउ कंसीडर these are the, this is one container, this is another container, and this is another one. Let's take the example of three conductors. All the three have same level of water. All the three conductors have same level of water. Same level of water. Does they have? The question is very simple. Do they have same quantity of water? Same quantity of water. This is a very important question. So your answer is no. They do not have the same quantity of water, even though they have the same level of water. Similarly, I want to say that if you are given, suppose, three conductors and electric potential of all the three conductors is same. Listen carefully. Suppose you are given how many conductors? Three conductors. And you are told that all the three conductors have same electric potential. So, does you derive this conclusion that they will have the same quantity of charge? No, they may have same quantity of charge, they may not have. So, the electric potential of a conductor does not clearly tells us that about the quantity of charge. This you should remember. Again, I am giving you the example. Suppose करिए आपके पास तीन कंडक्टर है और आपको कहा गया तीनों कंडक्टर्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, तो क्या आप इससे ये इंफरेंस निकाल सकते हैं कि उन तीनों में चार्ज भी सेम होगा? नहीं. तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात आती है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर. तो ये कैसे पता चले? हाउ टू फाइंड इट आउट इफ थ्री conductors have same potential, and how to calculate the charge on a conductor with the help of potential. This is the first thing. How to calculate the charge on a conductor with the help of its potential. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी. तो आखिर ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डिसाइड करेगी? तो मैं आपको आपके सवाल का आंसर दे देता हूँ, जवाब दे देता हूँ. Capacitance of conductor decides the quantity of charge. तो अब यहाँ हम अपना चैप्टर जनरली स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखिए, कैपेसिटेंस के बारे में हमने लिखा था.
पहला पॉइंट आप बनाइए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन अनचार्ज्ड uncharged conductor, uncharged conductor is always zero, is always zero. Second point, on charging a conductor, on charging a conductor, its potential increases, its potential increases. So we can say that, we can definitely say that charge is proportional to potential. Charge is proportional to potential. Q is proportional to V. फिर यहाँ पे proportion साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं. C is a constant. C is constant, which is called capacitance of conductor, which is called capacitance of conductor. Now this formula tells us if we know the potential and capacitance, if we know the potential and capacitance, then we can calculate the charge on the conductor. Now you are getting the answer of your question. If three conductors have same potential, does they have do they have same charge? No. The charge will be decided by their capacitance. So Q equal to CV. इसको नोट कर लीजिए. इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी क्लास है. फिर आगे आगे बढ़ेंगे तो कैपेसिटेंस के चैप्टर में वी विल एडवांस. बहुत सिंपल वे में हमें पढ़ना है. यहाँ पर छोटा सा चैप्टर है, बट एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी लार्ज. इसको नोट कर लिया तो आप मेरे से चैट भी कर सकते हैं. यू कैन चैट विद मी. सो फ्रॉम ओके, कुछ प्रॉब्लम होती है, नेट वगैरह की प्रॉब्लम होती है. ओके, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. सलोनी, बॉटम लेफ्ट पे अनम्यूट का बटन होता है, तो आप उस पर बात कर सकते हैं. किसी ने गैलेक्सी J4 से आप अपने लैपटॉप पे भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं. तो मैं पिछली स्लाइड पे जा रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ से हमने, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन कंडक्टर. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अनचार्ज कंडक्टर का जीरो होता है. तो अ कंडक्टर विल हैव अ पोटेंशियल ओनली व्हेन इट कैरीज सम चार्ज. Second point, on charging a conductor, its potential increases. So we can say that charge is proportional to potential. Q is proportional to V. अब इस proportional sign को हटा के हम एक constant लाते हैं. तो C is a constant which is called capacitance of conductor. तो जैसे मैंने आपसे कहा था, अब मेरी बात का आपको जवाब मिल गया है. You have got the answer. कि किसी भी कंडक्टर पे अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, तो उस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आपको उसकी कैपेसिटेंस को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पोटेंशियल से. किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पोटेंशियल से. तो ये आपका, यहाँ से हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. किसी ने गैलेक्सी J4 से ज्वाइन किया. मे आई नो हु इज? यू कैन चैट. आप चैट कर सकते हैं.
और लेफ्ट पर आपके बॉटम लेफ्ट पर एक अनम्यूट का बटन है, तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस is farad. Q equal to CV, C equal to Q by V. So we can write farad equal to coulomb per volt. Coulomb per volt. Dimension of capacitance. Now let us discuss dimension of capacitance. Dimension of capacitance कैसे निकालेंगे? Coulomb upon volt. हमेशा याद रखिए, वोल्ट को हम लिख सकते हैं, वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम। वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम, कूलम स्क्वायर अपॉन जूल। अब कूलम को आप लिख सकते हैं एम्पियर, ये आपको सीखना चाहिए, एम्पियर इनटू सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड। और जूल को आप लिख सकते हैं न्यूटन इनटू मीटर। जूल वर्क की यूनिट होती है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब डायमेंशन हम लिख सकते हैं एम्पियर का ए, सेकंड का टी, न्यूटन याद रखना चाहिए आपको, फोर्स की डायमेंशन mlt-2 और मीटर की डायमेंशन एल। तो अब आप इसको लिख सकते हैं m टू द पावर -1, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, नीचे देखिए l इंटू एल, एल स्क्वायर, सो इट विल बिकम l टू द पावर -2 एंड दिस t टू द पावर -2 व्हेन इट विल मूव टू न्यूमरेटर तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया टी क्यूब and A, that is A stands for ampere. तो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए, और साथ ही साथ आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए 1 माइक्रोफैराड is 10 to the power -6 farad, 1 picofarad, 1 picofarad, that is 1 microfarad, that is 10 to the power -12 farad. ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दिस यू मस्ट रिमेम्बर। एंड फैराड इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया तो आप फिर मेरे को बता सकते हैं कि आपने नोट कर लिया। इंट्रोडक्टरी क्लास है आज, तो चैट जरूर करा करिए। सलोनी ने नोट कर लिया, रिया धारवी ने भी नोट कर लिया, निमिषा आपने नोट कर लिया। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर वो एम्पियर इनटू सेकंड का होल स्क्वायर है, तो वो a स्क्वायर t स्क्वायर नहीं होगा क्या? यस यस बिल्कुल, आई एम सॉरी, बिल्कुल इसका ना आप लोग अलर्ट हो गए हैं, मुझे अच्छा लगता है ये सब देख के। एक मिनट मैं इसको सुधार देता हूँ, है ना, एक मिनट, ये थोड़ा मेरे को जगह चाहिए यहाँ, तो लेट मी राइट इट अगेन। ओके, वेरी गुड। ये पढ़ाई कैसी चल रही है? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, बिल्कुल सही कहा आपने, न्यूटन mlt-2 और मीटर हो गया L।
तो वी कैन राइट m-1 और l to the power -2 t to the power 4 and this is a square, right? Okay, अब ठीक हो गया ये, अब ठीक हो गया. Now is it all right? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, घबराइए मत. नेटवर्क ठीक है ये, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन पेड प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है, सिक्योर्ड है. एंड दिस इज नॉट चाइनीज वन, दिस इज zoom.usa, यूएसए का प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं. तो कैपेसिटेंस अब देखिए, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने. तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू Q by V, by using this formula you can calculate the capacitance. To calculate the capacitance of a conductor, to calculate the capacitance of a conductor, you must know charge on the conductor, पहली चीज charge on the conductor and potential of conductor. If you know these two things, then you can calculate, then you can definitely calculate the capacitance. Charge of the conductor, and you must know the potential of the conductor. So by knowing the charge and potential of a conductor, we can calculate the capacitance of conductor. But in my opinion, the most important question is what? Let me tell you that. On what factor capacitance of a conductor, capacitance of a conductor depends? Can you answer this question? Anyone, please? जवाब दीजिए, मेरे को आपका जवाब चाहिए. अरे गलत दो, पर जवाब देना सीखो बच्चों. कैपेसिटेंस, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? मान लीजिए आपके एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया, तो हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन? प्लीज आंसर, प्लीज स्पीक, अनम्यूट करिए और बोलिए, घबराइए मत, गलत बोलिए, बोलना तो शुरू करना पड़ेगा. नो वन वांट्स टू आंसर. आंसर दीजिए. अच्छा, चार्ज, हाँ ठीक है, और बोलो. अच्छा, बाकी लोग चैट के थ्रू बोलना चाहते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं. सलोनी ने बोला पोटेंशियल, नारवी ने बोला चार्ज, और रिया आप क्या बोलती हैं? और निमिषा भी है क्लास में. चलो देखते हैं बाकी लोग क्या बोलते हैं. रिया ने बोला बोथ, ठीक है, चार्ज और पोटेंशियल बोथ. और निमिषा आप क्या बोलती हैं? आई डोंट नो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है गैलेक्सी J4+ सीरीज. आई एम नॉट गेटिंग टू द नेम. देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर only depends upon shape and size, shape and size of the conductor. इस फॉर्मूले से हम इसे कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं. अब जैसे शेप और साइज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन
ये भी लिखना पड़ेगा। मैं आपको अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज। अब जैसे एक बॉटल है, उसमें पानी हो चाहे नहीं हो, मान लीजिए आपके पास एक वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल मान लीजिए, उसमें पानी भरा हो चाहे नहीं भरा हो, और बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर। तो बॉटल की कैपेसिटी तो 1 लीटर ही रहेगी, वेदर इट इज फिल्ड विद वाटर और नॉट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू? एक बॉटल में पानी भरा हो चाहे नहीं भरा हो, पर उसकी वॉल्यूम कैपेसिटी फिक्स है। उसी तरह एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस फिक्स है, चाहे उस पर चार्ज हो चाहे ना हो। अब ये देखिए खाली बॉटल बताइए, तो खाली बॉटल मतलब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एनालॉजी में कि एक कंडक्टर है जिसमें चार्ज नहीं है। अब अगर कंडक्टर में चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं है। तो क्या कंडक्टर की एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज सिर्फ चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करती है? एक ये जो बॉटल आपको फिगर में दिख रही है, लेफ्ट साइड पे आपको एक फिगर में बॉटल दिख रही है, इसमें पानी भरा हो चाहे ना भरा हो, पानी नहीं भरा होगा तो पानी का लेवल भी नहीं होगा। अगर किसी कंडक्टर पर चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं होगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कंडक्टर की कैपेसिटेंस जीरो है। तो खाली बॉटल का भी कैपेसिटेंस, जैसे ये बॉटल है, वाटर बॉटल है, मान लीजिए मिनरल वाटर की बॉटल है और 1 लीटर की बॉटल है, इसमें पानी हो चाहे नहीं हो तो इसकी कैपेसिटी तो 1 लीटर फिक्स है। उसी तरह एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस सिर्फ उसके शेप और साइज पे डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फैक्टर। सो इज इट क्लियर? यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक टू मी प्लीज। आप मुझे अनम्यूट करिए और आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप मुझसे अगर बात करेंगे। गलत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देखो आपने बोला तो अच्छा है, बोलना अच्छा होता है। अगर हम सही बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम गलत बोलते हैं तो इससे ज्यादा अच्छी बात है। पूछो कैसे? क्योंकि हम गलत बोलते हैं तो फिर हमें सिखाया जाएगा कि सही सही क्या है। तो हम गलत बोल के ही तो सही सीखते हैं। तो ठीक है, तो it only depends upon the shape and size of conductor, it does not depends upon charge and potential। and एक और चीज बताते हैं, मटेरियल मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर वो कॉपर का बना है, आयरन का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस को सिर्फ उसका शेप और साइज डिसाइड करेगा। अब आपके घर में वाटर टैंक होता है, चाहे उसमें पानी भरा हो चाहे नहीं भरा हो, और उसकी कैपेसिटी है 500 लीटर है, 1000 लीटर है, 1500 लीटर है, लाइक दैट। तो इसको आप जरा समझिए, एक कंडक्टर पे चार्ज हो चाहे ना हो, और उसकी चार्ज कैरिंग कैपेसिटी, चार्ज कैरिंग, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है उसके पास। हाँ, ये जो फॉर्मूला है C इक्वल टू क्यू बाय वी, ये मैं आपको बिल्कुल बोलना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले से हम कैपेसिटेंस को हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं, Q बाय V। इसलिए मैंने लिखा है टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, to calculate the capacitance of a conductor you must know charge on the conductor and potential of conductor. So by using बच्चों this formula we can calculate the capacitance. But if you are asked on what factor capacitance depends, the answer would be very different. The capacitance of conductor only depends upon its shape and size. आगे चल के ये प्रूव भी होगा। आपने इसे नोट कर लिया तो बता दीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसको आप समझिए। दिस इज समथिंग कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ओके, समवन वांट्स टू चैट, चैट जरूर करिए। ओके, नोट कर लिया। एक ही बच्चे का जवाब आया, सारे बच्चों को जवाब देना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनका सब्जेक्ट इम्प्रूव हो। मैं चाहता हूँ आपका सब्जेक्ट इम्प्रूव हो। मुझे कल आप लोगों की डाउट क्लास लेनी थी कल, लेकिन मेरा आई एम टेलिंग यू आई एम वर्किंग फॉर वेदांतो आल्सो। और अन अकेडमी इतना इतना प्रेशर था कल, क्लासेस का शेड्यूलिंग बहुत टाइट थी। 11 बजे मैं फ्री हुआ। आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने उनकी स्लाइड्स बना ली हुई है। अब अगर आपने इसे नोट कर लिया तो हम आगे बढ़ेंगे।
तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? शेप और साइज पर। अब देखिए, ऑन व्हाट फैक्टर? पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, potential of a conductor. Thank you. Potential on what factor? The potential of a conductor depends. क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जो चैप्टर में बार बार आएंगे, तो इसलिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट डिपेंड्स. पॉइंट्स बना के लिखा करिए. इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन shape and size of conductor. Second point, it depends upon charge stored in the conductor. In the conductor. Let me explain you. Q equal to CV. So what is V? Q by C. चार्ज पे भी डिपेंड करता है और कैपेसिटेंस पे भी डिपेंड करता है. और कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? शेप और साइज पर. इसलिए मैंने लिखा कि ये डिपेंड करता है किस पर? शेप और साइज पर. शेप और साइज पर. इसको आप नोट कर लीजिए. अब देखिए, हम अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. तो Q इक्वल टू CV इज द की फॉर्मूला फॉर दिस होल चैप्टर. जैसे ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे कैपेसिटेंस में Q इक्वल टू CV. और मैं आपको आज एक हिंट और ट्रिक देता हूँ. अगर आपको कभी कैपेसिटेंस का कोई क्वेश्चन नहीं बने, तो आप Q इक्वल टू CV को बार बार अप्लाई करते जाइए हर कैपेसिटर पे. तो कभी ना कभी आपका आंसर जरूर आ जाएगा. यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर. तो हम आगे बढ़ रहे हैं. अब हम अगले डेरिवेशन पे आ रहे हैं. पहले डेरिवेशन पे आ रहे हैं. कैपेसिटेंस of an isolated spherical conductor. So let us begin with it. When charge is given to spherical conductor, the charge is uniformly distributed over its outer
surface, no charge resides inside the conductor, inside the conductor. ये तो पहला पॉइंट हो गया, inside the conductor. The potential at every point, ये लिखना जरूरी है, at every point on the surface is same. So lines of forces are normal to the surface. Let surface is given, पूरा लिख के कर लेते हैं. A charge plus q and radius of sphere is r. इतना आप नोट कर लीजिए. जैसे आप नोट कर लें तो मेरे को बता दीजिए, फिर मैं अगली स्लाइड पे आ जाऊंगा, तो फिर मैं आपको बता दूंगा. इसको डिराइव करेंगे हम, थोड़ा बहुत लिखना जरूरी है. तो आज इंट्रोडक्शन है क्लास का, बिल्कुल बेस लेवल से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे जैसे आगे जाएगी तो आपको बहुत मजा आएगा. नोट कर ले तो बता दें. ओके, you can take your time, no issue. ओके, धारवी नोट कर लिया, निमिषा, रिया ने तो नोट कर लिया, सलोनी बेटा आपने नोट कर लीजिए. आप जैसे आप मेरे को बताएंगे तभी मैं आगे अगली स्लाइड पे जाऊंगा. और क्लास के बाद सलोनी आप अनम्यूट करके एक मिनट बात कर सकती हैं मुझसे, कुछ आपसे बात करनी थी. हाँ सर. ये निमिषा को जानती हो ना तुम? सर हमारे स्कूल वाली है, पता नहीं है पक्का मेरे हाँ को. वही है, निमिषा वही है. तो उनको, निमिषा को आप बता दोगे कैसे वो प्लेटफॉर्म पे अपने को एक्सेस करना है, सिखा दोगे? हाँ सर. है ना? तो हाँ मैं इनका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर दूंगा, ठीक है, तो जिससे नोट्स वगैरह सब इनको मिलना शुरू हो जाए. जी सर. ठीक है, थैंक यू. इतना नोट कर लिया तो बता दो आप लोग. जैसे आप हाँ बोलोगे तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. धारवी ने नोट कर लिया. तो हमेशा याद रखिए, जब भी एक स्फेरिकल कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं तो चार्ज अंदर नहीं आता. नो चार्ज रिजाइड्स इनसाइड द कंडक्टर. Charge is always on the outer surface and it is uniformly distributed on the outer surface. And at each and every point on the spherical conductor, the electric potential is same. So it is considered as equipotential surface. So let's go to the next slide. So this is the case. So it is given charge
let it is given what charge plus q, and its radius is r. Potential at the surface of conductor 1 upon 4 pi epsilon naught q by r. Now we know that q equal to cv. So we will substitute the value of q in equation 1, 1 upon 4 pi epsilon naught cv upon r. So what happens? This we will get cancelled. So we will get 4 pi epsilon naught r equal to c. So capacitance is 4 pi epsilon naught r. So capacitance of sphere is directly proportional to its radius. If sphere has more radius, then its capacitance will be more. And if it has small radius, then its capacitance will be small. So if you are asked that on what factor the capacitance of spherical conductor depends, your answer is it only depends upon the radius of spherical conductor. तो एग्जाम में आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया था. There you are given the three spherical conductors. Just listen the question carefully. You are given the three spherical conductors. They all have same radius. They all have same radius. But one is made up of copper, another is made up of iron, and the third one is made up of aluminum. Again, you are given three spherical conductors. They all have same radius. One is made up of copper, the second is made up of iron, and the third is made up of aluminum. Then which of the following is correct? The first answer, the copper sphere will have more capacitance. Second answer, the aluminum sphere will have the highest capacitance. Third answer, iron sphere has got the highest capacitance. Fourth answer, they all have same capacitance. So the answer is they all have same capacitance. The capacitance of sphere does not depend upon its material. It only depends upon its radius. So we can easily write over here that C1 upon C2 equal to R1 upon R2. C1 upon C2 equal to R1 upon R2, like that. इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं. नोट कर लिया तो बता दीजिएगा, चैट कर लिया करिए, यस वगैरह, है ना. अब देखिए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये इसको हम देख लेते हैं. आदमी का राइटिंग स्पीड बहुत बढ़ गया है अभी, अच्छी बात. और किसने नोट कर लिया? विया ने नोट कर लिया. निमिषा बेटा आपने नोट कर लिया? ओके. तो देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. तो 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट.
So capacitance is written as R into 9 into 10 to the power 9 farad. If you want to solve the numericals, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं. एक क्वेश्चन करते हैं. Find the capacitance of earth. Radius of earth is 6,400 kilometers. So let's solve it. We will use C equal to R upon 9 into 10 to the power 9. So the radius is converted into meter. Kilometer into converted into meter. 9 into 10 to the power 9. So 64 by 9 into 10 to the power 5. 3 plus 2 5, and this is minus 9. So C equal to 64 by 9 into 10 to the power minus 4. What we do? अब हम 10 to the power minus 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. So you will get it 6400 by 9. कैसे आया? ये जो 10 to the power minus 2 ये ऊपर चला जाएगा. This multiplied by this into 10 to the power minus 6 farad. ऐसा क्यों करा? हमारा आंसर आ जाएगा 6400 by 9 माइक्रोफेराड. अब हमें डिवाइड कर लेना है. 6400 by 9 को हम डिवाइड कर लेंगे. $711 microfarad. So this is the answer, approximately answer of this question. Now, today we are introducing the chapter. इसमें कंडक्टर है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स. देयर आर okay. If you have noted down, then please tell me. तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. Okay. अब देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं. There are 27 charged identical mercury drops are given. Each drop carries a charge 2 microcoulomb.
if they are combined to form a big drop, find the capacitance and potential. Capacitance and potential of big drop. Of big drop. So this is our question. This we will solve. As you know that to the drop is considered as a sphere. That is the first thing. You can consider the drop as a sphere. There is no doubt about it. ड्रॉप को आप स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं. अब इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो हमें इसमें मेंसुरेशन लगाना पड़ेगी. लेट अस फाइंड द radius of big drop. If 27 identical mercury drops are combined to form a big drop, combined to form a single drop, then the first question is very important. What is the radius of single drop, which was obtained by combining all these 27 drops? So we will use the theory of mensuration to solve this question. Volume of, देखिए अब हम सपोज करते हैं, यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. Let the radius of each small drop is r, and radius of big drop is r, capital R. So volume of 27 drops should be equal to volume of big drop. So 27 drop can be considered as a sphere, 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 pi r cube. So this 4 by 3 pi will get cancelled. So 27 r cube equal to r cube. So take the cube root, 3r equal to r. 3r equal to r. Because whenever you have to find the capacitance, you must remember capacitance of a sphere. You must know the radius of that sphere. You must know the radius of that sphere. और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में 27 एक मिनट charged identical mercury drops are given. Each radius ले लेते हैं 2 centimeter. Radius is 2 centimeter. I'm sorry, it was not given. और charge दिया हुआ था. So R will be 6 centimeter. अब हम बिग ड्रॉप की कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमें उसकी रेडियस मालूम चल गई. Because now we know the radius of big drop. तो ऐसे क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया होगा और चार्ज दिया होगा और बहुत वेरिएशन है क्वेश्चंस की, 1 by 1 करेंगे. तो ये देखिए, ये यहाँ पे हमने जो यूज किया ये मेंसुरेशन यूज किया. दिस वी हैव यूज्ड एज मेंसुरेशन.
थोड़ा इसको गलत हो गया तो इसको थोड़ा सुधार देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। We will calculate the radius of big drop, no issue, कोई इशू ही नहीं है। हम रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आराम से आपने नोट कर लिया इसे। ओके, someone has noted down. ओके, ये याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट स्टेप थी। तो बड़े ड्रॉप की रेडियस मालूम चल गई 6 सेंटीमीटर। अब कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप will be 4 pi epsilon naught r. So it can be written as r upon 9 into 10 to the power 9. 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 6 into 10 to the power minus 2 मीटर। So it is 3 से कैंसिल कर दीजिए, 2 by 3 into 10 to the power minus 7. So it can be 2 by 3 into 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 6. So it is 2 by 30 microfarad, or you can say that 1 by 15 microfarad. 1 by 15 microfarad. So it is very simple. These are the basic calculation. You need to remember only one formula, that capacitance of sphere. You must remember this basic formula, capacitance of a sphere. सर Yes, वो नीचे 10 रेज टू द पावर 9 जब ऊपर जाएगा तो वो -9 होगा। -11 हो जाएगा, है ना? हाँ अरे यार गलती हो गई, इसको सुधार देते हैं, एक मिनट। हाँ, -11, वेट ए मिनट, आई गॉट इट। इसको सुधार देते हैं, सॉरी, एक मिनट, इसको थोड़ा फिर से करते हैं। -11 होगा, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 10 to the power -11. So what we do, 10 to the power -1, 10 to the power -1, so it is 20 by 3 into 10 to the power -12 farad. So it is 20 by 3 microfarad, 20 by 3 picofarad. अब ठीक हो गया है मेरे ख्याल से, है ना? Twenty by 3 picofarad is the answer. The questions are not tough. Once you start solving it, then it becomes easy. It is not tough. आप लोग कितने बजे सुबह फ्री हो जाते हैं स्कूल से? प्लीज आंसर। 11:30, 12? सर 11:30। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? लंच वगैरह कब करते हैं? 1 बजे तक। हाँ ठीक है, ठीक है। रेस्ट वगैरह करते हैं प्रॉपर कि नहीं करते? तो ये कैपेसिटेंस आ गई। अब देखिए, अब हमें बिग ड्रॉप का पोटेंशियल भी निकालना है। कैपेसिटेंस निकालने का तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक आप रेडियस नहीं निकालेंगे तब तक आप कैपेसिटेंस नहीं निकाल सकते।
अब देखिए, चार्ज ऑन वन ड्रॉप, चार्ज ऑन वन स्मॉल ड्रॉप कितना था, 2 माइक्रो कूलम। सो चार्ज ऑन बिग ड्रॉप जो 27 ड्रॉप से मिलके बनता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत सिंपल है, सॉरी 27 इंटू 2 माइक्रो कूलम, दैट इज 54 माइक्रो कूलम। तो ये चार्ज का कंसेप्ट आ गया। नाउ वी विल यूज Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q बाय C। चार्ज है 54 माइक्रो कूलम और कैपेसिटेंस अभी हमने बैक स्लाइड पे निकाली है 20/3 पीको फेराड, 20/3 पीको फेराड। तो कैलकुलेशन में थोड़ा इसको हमें 10 टू द पावर -12 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 54 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 10 टू द पावर -6। क्योंकि ये -12 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से 10, so it is 81/10 into 10 to the power -6 volt. So it can be written as 8.1। 10 to the power -6 volt को आप लिख सकते हैं माइक्रो वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, because 10 to the power -6 is called micro, that you must remember। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, एक ड्रॉप पर चार्ज है, मान लीजिए 100 ड्रॉप्स हैं और हर ड्रॉप पर चार्ज है 5 माइक्रो कूलम। और अगर 100 ड्रॉप्स को मिक्स कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाते हैं तो उस बिग ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा? बहुत सिंपल है, वन ड्रॉप पे चार्ज कितना है? 5 माइक्रो कूलम। तो 100 ड्रॉप पे कितना होगा? 500 माइक्रो कूलम। सो चार्ज हैज नॉट नो इश्यू, पोटेंशियल इवन हैज नो इश्यू। बट अगर आपको ऐसे केसेस में बिग ड्रॉप की कैपेसिटेंस निकालनी है, if you really want to find the capacitance of big drop, so you need to find the radius of that big drop, radius of that big drop। इसको नोट कर लीजिए। और मैं आपको एक क्विक रिव्यू बताता हूँ कि कैसे चीजों को किया जाता है। नोट कर ले तो बता दें। ओके, फॉर्मूला एक ही है पूरे कैपेसिटेंस में, ये बहुत अच्छी बात है। Q इक्वल टू CV। तो देखिए आप, इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस R है। इस तरह से ये कितने ड्रॉप्स है? N ड्रॉप, और ये मिलकर बनाते हैं एक बड़ा ड्रॉप जिसकी रेडियस क्या है? R है। So volume of n small drops, concept is very simple, volume of n small drops is equal to volume of big drop, volume of big drop, sorry, volume of big drop, volume of big drop। So n into 4/3 pi r cube equal to 4/3 pi r cube। So n to the power 1/3 क्यूब रूट ले लिया into r इक्वल टू r।
So the radius of big drop is always n to the power 1 by 3 into r. This way we can do it. और ये सब स्मॉल ड्रॉप मिलके ये फिर से आपको बता दिया, इससे अब आपको ये बिग ड्रॉप, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म वन सिंगल ड्रॉप. इसको आप नोट कर सकते हैं. यस, तो देखिए, capacitance of big drop will be 4 pi epsilon r and capacitance of each small drop will be 4 pi epsilon r. So these are the two equations. So C big upon C small r upon, so r can be written as n to the power 1 by 3 into r upon r. This will get cancelled. So capacitance of big drop divided by the capacitance of small drop will be n to the power 1 by 3. So we can write a wonderful result. Capacitance of big drop is always equal to n to the power 1 by 3 times of capacitance of small drop. So you must remember this. ये पूछा गया है बोर्ड में भी और कई जगह पूछा गया है. Defined drops, small charge drops are combined to form a big drop. What will be the ratio of capacitance? What will be the ratio of capacitance of big drop to the capacitance of small drops? To the capacitance of small drops. निमिषा, मैं आपको क्लास का रजिस्टर कर लेता हूं, तो आप प्लेटफॉर्म पे जाके अपने नोट्स देख सकते हैं और बात करिए. फिर आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है, फिर क्लासेस वगैरह का बात करते हैं, अलग से शेड्यूलिंग करके आपकी क्लास लेते हैं. इसको नोट कर लीजिए तो आप बता दीजिए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट रिमेंबर. लेट मी हाईलाइट इट. ओके, this is wonderful and always remember this. Yes, someone wants to chat. Okay, so देखिए, ये आपको याद रखना चाहिए, that you must remember this. इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? इम्पोर्टेंट है. तो अभी एंड करते हैं. अब देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट हो गया है. लेट मी टेल यू दैट इन चैप्टर्स में अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर पढ़ने वाले हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, और फिर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, redistribution of charges and grouping of capacitors, and dielectric polar and non-polar dielectric molecules, electric polarization of matter. So this is the syllabus of your capacitance. तो इसको अब एंड करते हैं. तो ये अभी अपलोड कर दूंगा मैं प्लेटफॉर्म पे, आप इसके नोट्स वगैरह भी देख सकते हैं. टेक केयर. और बच्चों को एक आखिरी एडवाइस, खुश रहो,
जब भी स्कूल खुलेंगे खुलेंगे सोचो मत, आप तो अपना कोर्स तैयार करते चलो। ओके बाय।